चलो अब हम ये आगाज़ करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका अब इंतज़ार, चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोई बहाना ना कोई अब देरी होगी, खुल जाएगा मनोरंजन का पिटारा, अब हर घड़ी आपके हंसने की बारी होगी। Every child is a unique flower and together make this world a beautiful garden. By this beautiful thought on this auspicious morning, I, Sneha Shekhar, I, Ashi Priya. A very good morning to all. Do you know why we call this day as a special gathering? Yes, today is Children's Day. On the birth anniversary of Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of India, we celebrate this day as Children's Day as he was very fond of children. From this special morning, do I please welcome our Honorable Director, Mr. Anil Kumar, our Principal Ma'am, Pratima Singh, our Vice Principal, Mrs. Savita Kumari, our Honorable Chief Guest, Dr. K.K. Keshri, who is a physician, Dr. Nimmi Rani, eye specialist, Dr. Ajay Kumar, who is a dentist, Mr. Suresh Filwarvi, Mr. Pankaj Ranjan, who is a social worker, and presented respected teachers, creative coordinators, all lovely student parents to the special gathering of our school. स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे, छात्रों और युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा के एक स्रोत रहे हैं। जैसा कि पता चलता है कि बाल दिवस के 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बच्चों को समर्पित और उनकी मासूमियत, पवित्रता का एक प्रतिनिधित्व माना जाता है। So I would like to clap a very huge round of applause for our little masters on this special day, Children's Day. Please clap for them. Children, there are no special word to describe how special they are. Come on, let us enjoy this day with fun and laughter. So, now we will have our program starting with the prayer offering to Supreme Power and Creator of this world. Now, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge, and Jawaharlal Nehru. So, I please invited our Honorable Director, Mr. Anil Kumar, please come on the stage. Our Principal, Mrs. Pratima Singh, Vice Principal, Mrs. Savita Kumari, Honorable Chief Guests, K.K. Keshri, Dr. K.K. Keshri, Dr. Nimmi Rani, Dr. Ajay Kumar, Mr. Suresh Filwarvi, and Mr. Pankaj Ranjan, and all teachers, and Dr. Santosh Kumar, please come on the stage for lamp lighting ceremony as followed by a prayer song. Thank you to all. Now, for continuing of the program, I will like to call Prathama Arya on stage at my place. Hope you all enjoy this program together with them. Thank you for all being present here. शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सुप्रभात आप सभी को जो यहाँ प्रस्तुत है। आप सभी का मैं वापस स्वागत करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। Really, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है क्या प्रथम? I really like it. So Pratham,
तुम इस चिल्ड्रंस डे के मौके पे तुम्हारे तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इधर उधर की बातें घूम रही होगी, मुझे गिफ्ट नहीं मिला तो मुझे खाना नहीं मिला, ये वो। खाना वाना खा के आए हो? नहीं मैम। तब तो तुम मुझे बीच में डिस्टर्ब करोगे कि मैं खाना खाऊंगा तो मुझे पानी चाहिए, तो मुझे ये वो। हमारा प्रथम बहुत बिजी पर्सन है, इसे कब भूख लग जाए, कब पानी पीने का मन कर जाए, मेरे को भी नहीं पता है। सो आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए, कभी भी यहाँ से गायब हो सकता है ये। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है। मुझे पता था कि ये बिना सवाल पूछे बिना रहेगा नहीं। हाँ बताओ। मैम, कब्रिस्तान के आगे दरवाज़ा क्यों होता है? यार प्रथम, तुम तो ऐसी ऐसी सवाल पूछते हो यार कि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्यों होता है बताओ? मैम क्योंकि मैम वहाँ लोग मरते हैं जाने के लिए। ओ, इसीलिए नॉक नॉक ऐसा रहता है क्या? नहीं मैम, लोग चलो मरते प्रथम, हैं। लेट इट बी। ओके, ठीक है मैम। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। क्योंकि आप लोगों का वेट करना मेरे को मुश्किल लग रहा है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोग्राम। So now I am confident that our student will benefit greatly from their presence. So this is the most awaited section of every event within a few minutes. Parents, are you ready to thrill of the exciting, energetic dance with a power-packed performance of a young talented student and their dance master, Mr. Manoj, sir, with a group and perform in front of you after our student were together. Can I expect a huge round of applause for our little tots? मूषक जी ला रहे हैं, गणपति बाप्पा आ रहे हैं। शंख बजाना, खुशियाँ मनाना, गणपति बाप्पा आ रहे हैं। मूषक जी पे आ रहे हैं, गणपति बाप्पा आ रहे हैं। सिंहासन सजाना, मोदक खिलाना, गणपति बाप्पा प्यारे हैं, सबके राज दुलारे हैं, गणपति बाप्पा आ रहे हैं। प्रार्थना करना, दिल से कहना, गणपति बाप्पा सुन रहे हैं, विघ्नों को मिटा रहे हैं, गणपति बाप्पा आ रहे हैं। एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। जय हो गणपति की, जय हो मंगल मूर्ति की, जय हो गणपति की, जय हो मंगल मूर्ति की। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, स्वामी देना साथ
that was an amazing, incredible performance. They really rocked with their energetic performance. क्या स्नेहा मैम फ़ोन क्यों चला रही हैं? चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम चल रहा है. ओ सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, वो जैसे हनुमान चालीसा में कहा जाता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसी तरह जब हमारे हाथ में फ़ोन आते हैं ना, तो वो आती है, भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोग्राम. संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना को जीवन, हर चीज़ के लिए उड़ान देता है. तो आइए इसी शब्द के साथ मैं आपकी होस्ट आप यहाँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूँगी हमारे सिंगर मिस्टर सोनू को, जो अपने स्वीट वॉइस के साथ जोरदार आवाज़ के साथ आप लोगों का मनोरंजन करेंगे. तो प्लीज़ इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं. कुछ लोग एक रोज को बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं. उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. वो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. आँख धोखा है, क्या भरोसा है, सुनो शक दोस्तों दोस्ती का दुश्मन है. अपने दिल में से घर बनाने लगे, कल तड़पना पड़े याद में उनकी. रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं. एक पल में ये आगे गुजर जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे के मंजर बदल जाते हैं. एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले,
मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मशरूम ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू गए मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आशा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर गई तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू गए मेरे मन को किया तूने थैंक यू एवरीवन। डियर पेरेंट्स, यहाँ हमारे बीच हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हमारे सोशल वर्कर बैठे हुए हैं। आप लोग के अंदर भी बहुत सारे अपने बच्चों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, बहुत कुछ आता होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे फिट रखें, क्या करना चाहिए हम लोगों को शुरू से कि हमारे बच्चे वीक ना हो या उनको किसी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे बीच बैठे हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो पहले मैं इनसे कुछ ऐसी बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कोई भी अपना सवाल पूछना हो तो ये लोग बताएंगे, आपके हर क्वेश्चन का ये लोग जवाब देंगे। ओके सर, पहले मैं पूछना चाहूँगी जो हमारे फिजिशियन हैं कि सर ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे आज के डेट में कुछ बच्चे बहुत वीक बॉर्न होते हैं और धीरे धीरे वो हम लोग समझ नहीं पाते, हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते। थोड़े दिन के बाद जब ग्रोथ होने लगता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा वो प्रॉब्लम है, तो पहले से क्या ऐसा मतलब हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि हम लोगों को ये अवेयरनेस रहे कि हाँ हमारे बच्चे को ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम ना होगी। या जैसे हमारे बीच में कभी कभी ऐसा मैम होता है कि हमारे छोटे बच्चों को ही बचपन में ही मैम आँख की प्रॉब्लम हो जाती है। आँख की प्रॉब्लम होती है बहुत 5 या 6 साल में उन लोगों को ये पता चलता है अच्छा हमारे बच्चे को तो अभी मतलब इतनी छोटे से उम्र से ही प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं होगी। तो वो मैम कैसे हम लोगों को पता चले, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो जाता है पता करने में ही कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम भी है।
तो बहुत सारा सवाल है मैम, हमारे पेरेंट्स का भी कुछ सवाल होगा मैम। तो आप पहले आप लोग अपना बताइए मैम कि हाँ कैसे हम लोग उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, पीडियाट्रिशियन, मतलब एक बच्चे का डॉक्टर हूँ। पहले तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे, बच्चे लोग को। मैम ने पूछी कि अगर कोई तरह का बीमारी है जो हम लोग को लेट मालूम चलता है, कोई चीज़ है जो हमको पहले अगर अंदाज़ा लग गया कि ये चीज़ है, तो उसका हम पहले से अगर ट्रीटमेंट करेंगे और पहले अगर मालूम चल जाए, तो ऐसा है कि कुछ चीज़ जो है, जो कॉमन बीमारियां हैं या कॉमन डिजीज़ है, उसका कुछ न कुछ लक्षण ज़रूर रहता है। हो सके उस लक्षण को पेरेंट्स नहीं पहचान पाए, या कुछ ऐसा लक्षण है जिसका क्रोनिक डिजीज़ है, बाद में कुछ हो सकता है, उसका जन्म होने के बाद ही मालूम चल जाता है। तो जन्म होने के बाद ही मालूम चल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग मालूम चल लेंगे कि ये बीमारी है, ये नहीं मालूम चलेगा। एक जैसे अच्छे सेंटर में डिलीवरी होने के हम लोग एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराते हैं, हाँ, वो सब जगह उपलब्ध नहीं थी। जैसे हमने एम्स में काम किया तो वहाँ हर बच्चे का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है, तो उसमें अगर क्रोनिक डिजीज जो बाद में होने वाला है वो पहले ही हम लोग मालूम कर लेते हैं। दूसरी बात है कि कॉमन डिजीज का, जैसे बच्चा को अभी जैसे सीज़न शुरू हुआ, विंटर का सीज़न शुरू हुआ, बार बार सांस फूलना, सांस तेज हो जाना, बुखार आना, जो बाद में दमा का रूप लेता है, आस्थमा बोलते हैं हम लोग, छोटे बच्चों में उसको वालरी बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर बार बार हो रहा है तो हमको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हो सके ये बच्चा का ये रूप बाद में आस्थमा का ले सकता है। इसका प्रॉपर आप लोग अगर ट्रीटमेंट कराए या प्रॉपर टाइम पे मालूम चल जाए तो ये नहीं होगा। उसी तरह हर बीमारी का है, अगर किसी तरह से कुछ लक्षण का मालूम चले, एक नॉर्मल बच्चा आप आस पड़ोस में देख रहे हैं, किसी तरह नहीं, उससे अगर थोड़ा भी भिन्न कुछ आपके बच्चे में मिल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ मेरे बच्चे के साथ गड़बड़ है। बस ये ध्यान रखना है, बाकी तो पता चले ट्रीटमेंट या उसका डायग्नोसिस करने पे। थैंक यू संतोष सर। प्लीज़ क्लैप हमारे संतोष सर के लिए, प्लीज़ क्लैप करें। के केसरी सर, प्लीज़ आप कुछ कहना चाहेंगे? के केसरी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर कौशल किशोर केसरी है। मैंने 6 ईयर पारस इमरजेंसी में काम किया है। नाउ वर्किंग इन IGMS हॉस्पिटल पटना। मैं बच्चों के बारे में प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कुछ पेरेंट होते हैं, घर पे आए, बच्चों को सिक्का दे दिए, बच्चों के आसपास सिक्का छोड़ दिए, तो ये कभी ना करें। बच्चे क्या करते हैं, सिक्के को कभी कभी निगल जाते हैं, जो बहुत बड़ा इमरजेंसी होता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, कभी भी अपने विंडो के पास कोई चेयर, टेबल या अदर थिंग्स न रखें। आजकल का जो मतलब मैक्सिमम विंडो होते हैं वो ओपन होते हैं। जैसे मेरे सोसाइटी में एक बच्चा 7th फ्लोर से विंडो से झांकते झांकते नीचे गिर गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बालकनी में कभी भी ऐसा कुछ न छोड़ें जिस पर बच्चे चढ़ के बालकनी से फॉल डाउन कर जाएं। तीसरा, बच्चे को चुप कराने के लिए या बच्चे को खुश रखने के लिए कभी मोबाइल न दें, कि अपना परेशानी झेलने के लिए या हटाने के लिए बच्चों को मोबाइल का एक एडिक्शन लग जाता है। फिर बच्चे शाम में, रात में लंबे टाइम तक मोबाइल देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं, तो वो एडिक्शन के रूप में चला जाता है। बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना सबसे ईजी होता है। जब मोबाइल देखना चाहे आप उसको गेम में इन्वॉल्व करो, या नीचे उतर जाओ, अपने फ्लैट से बाहर निकल के उनको घुमाने का कोशिश करो, और स्पोर्ट में, खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव रखने का कोशिश करना। भले वो साइकिल चलाए या कोई मतलब क्रिएटिव वर्क करे, ना कुछ हो तो पेंटिंग करे, इस सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन मोबाइल को अवॉइड करना है। थैंक यू सर। निम्मी मैडम प्लीज़। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर निम्मी है। बगल में ही मेरा एक हॉस्पिटल है, दृष्टिकुंज नेत्रालय। आज चिल्ड्रंस डे चाचा नेहरू की स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है। इसके लिए मैं सारे बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाइयाँ देना चाहूँगी, और साथ में इस किड्स जोन के डायरेक्टर सर हैं यहाँ पर, अनिल जी, और मैडम प्रतिमा जी,
और सोशल वर्कर जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पंकज सर, इन सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का एक चांस दिया उन्होंने। चूँकि मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ, और बहुत दुख होता है देखकर कि कोरोना जो कोविड का जो पीरियड था उसके तो जो बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स और डिजीज़ेस जो मैनकाइंड ने झेला, लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी आँखों के ऊपर इसका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट हुआ है, और आने वाले समय में इसकी और भी इसकी त्रासदी हमारा यंग जनरेशन अभी झेलेगा। बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों के जो माता पिता हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो डिजिटल अटैक हुआ है हमारे यंग जनरेशन के ऊपर मोबाइल के माध्यम से, उसको रोकने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की ही है। आप लोगों को उसमें एकदम प्रोएक्टिव होना होगा ताकि बच्चों की आंखों पर जो ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है मोबाइल की वजह से, उसको रोका जा सके। क्योंकि रोज़ हम अपनी ओपीडी में देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनमें कुछ बहुत बारीक सिम्टम्स होते हैं जिनको कि पहचानना एक गार्जियन की जिम्मेदारी है। बच्चे बार बार अपनी आंखें रब करते हैं, रबिंग, आँखों से लगातार उनके पानी आता है, खुजली और जलन की शिकायत करते हैं। छोटे बच्चे माथे में दर्द और आँखों में दर्द की शिकायत करते हैं, उन्हें देखने में दिक्कत होती है। कोई भी ऐसे लक्षण अगर बच्चे में आप देखते हैं या अगर उनके स्कूल से ऐसा कोई भी कंप्लेन आता है, तो कितने भी आप व्यस्त हों अपने सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ में, प्लीज़ बच्चे को एक आई चेकअप कराएं। अच्छा, जब ये बात होती है तो हम एज एन आई स्पेशलिस्ट हम ये रिकमेंड करते हैं कि हर बच्चे का, जैसे बच्चा 3 साल की उम्र क्रॉस करता है, बच्चे को कोई दिक्कत हो या ना हो, उसका एक रूटीन एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर उन्हें आँखों में कोई दिक्कत है, उन्हें देखने में समस्या है, तो ये लक्षण आपको ही पिक करने होंगे। बच्चा सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से लाकर देखने की कोशिश करेगा, टीवी के पास जाके देखने की कोशिश करेगा, वो देखते समय अपना चेहरा, अपना सर टिल्ट करेगा, या उसकी आँखें जो हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं होंगी, जिसको हम भेंगापन बोलते हैं, आंखें भेंगी होने लगती हैं। ऐसा कुछ भी लक्षण अगर दिखता है तो बच्चे को डेफिनेटली एक आई एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों के लिए एक आई स्पेशलिस्ट से बच्चे को दिखाएं और जैसा सलाह दिया जाता है उसका पालन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय सर। अजय सर जो कि हमारे डेंटिस्ट हैं। हेलो, देखिए सभी को नमस्कार। आज किड्स जोन के प्रांगण में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मैं डॉक्टर अजय, ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, मैं दांत का डॉक्टर इसको हैं। आज के दौर में अगर आप देखेंगे 7 साल से बच्चे से लेकर 70 साल तक बूढ़े तक सभी के घरों में कुछ ना कुछ दांत की समस्याएँ हैं। आज अगर हम बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे जिस तरह के आजकल चॉकलेट, स्टिकी फूड, आइसक्रीम उसका वो सेवन करते हैं, इसके कारण बच्चों के दांत खराब हो देते हैं। और जनरली पेरेंट्स जो कि बच्चों को दांत उसको जाके कहीं डेंटिस्ट के बाद इसको निकलवाते हैं, ये गलत है। अनलेस अनटिल कि जब तक आपके परमानेंट दांत नहीं आए, जो आपके दूध के दांत हैं वो परमानेंट दांत की तरह वो काम करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परमानेंट दांत को आप, बच्चों को दूध के दांत को उसको आप निकलवाएं नहीं, उसका आप ट्रीटमेंट करें। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में यही है। इसको आप बिल्कुल ख्याल रखें। 2 बार ब्रश बच्चों को करने की आप आदत डालें इसमें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुरेश सर, सुरेश फुलवारवी सर। प्लीज क्लैप फॉर सुरेश सर। सबसे पहले आज के जो कारण हैं, जो काउज हैं इस चिल्ड्रन डे के मौके पर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हम शत नमन करते हैं और आप सभी को मुबारकबाद देते हैं ये बाल दिवस की। जवाहरलाल नेहरू को समझना खास करके बहुत ज़रूरी है
आज के युग में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को समझने का मतलब है साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझना, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आज बहुत ज़रूरी है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी जेल में रहते हुए, पिता का पत्र पुत्री के नाम। उसमें हमने कहीं नहीं देखा कि बेटी तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं, खाना पीना सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। नहीं, वो चिट्ठियां जो है ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। ये ज़मीन कैसे बनी, ये सूरज कैसे बना, ये चांद कैसे बना, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, ये सारे जो साइंटिफिक काउज हैं उसमें दिए हुए हैं इस यूनिवर्स के इवैल्यूएशन का, डेवलपमेंट का। इसलिए हमारे बहुत विद्वान साथियों ने कहा कि मोबाइल बच्चों को नहीं दें। बड़ी अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि बच्चों को किताबें दें। बच्चे मोबाइल से दोस्ती नहीं करें, किताब से दोस्ती करें। हमारे साहित्य में बहुत बाल साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा लिखा, ईदगाह लिखा, राम कथा लिखा। ये बच्चों को पढ़ने दे। मेरी समझ है कि वो साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनका मस्तिष्क बड़ा होगा, मस्तिष्क विशाल होगा। लेकिन वो साहित्य पढ़ेंगे, कथाओं को पढ़ेंगे, कविताओं को पढ़ेंगे, नॉवेल को पढ़ेंगे तो उनका दिल विशाल होगा, उनका हृदय बड़ा होगा। आज के ज़माने में लोगों के पास मस्तिष्क बड़ा है लेकिन दिल बहुत छोटा हो गया, सिकुड़ गया। इसलिए दिल बड़ा नहीं होगा तो वो आदमी नहीं बनेंगे, इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए है कि आईएएस बनने के पहले, डॉक्टर बनने के पहले, इंजीनियर बनने के पहले, वैज्ञानिक बनने के पहले आदमी बनना बहुत ज़रूरी है, इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समाज को दे सकेंगे, तभी आप यहाँ के जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, शोषित पीड़ित जो आवाम हैं, उनके लिए कुछ कर सकेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद इस देश का निर्माण किया। जवाहरलाल नेहरू को यह बाल दिवस मनाने का मतलब है उनके कंट्रीब्यूशन है। एम्स, आज भी दिल्ली का जो एम्स है उसका कोई सानी नहीं है, आईआईटी उसका कोई सानी नहीं है। ये भाखड़ा नांगल जो डैम है, बहुउद्देशीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने जो देश को दिया, आज कोई विकल्प नहीं है। आज हम मंदिर बनाने में लगे हैं, आज हम दुनिया की बड़ी मूर्ति बनाने में लगे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करने की ज़रूरत है और उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। बच्चों को उनसे, उनके साहित्य से, पिता का पत्र पुत्री के नाम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत क्या है, भारत क्या था, ये बच्चों को और हम बड़े लोगों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। तभी हम बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएंगे, बच्चों को सही रास्ता दिखा पाएंगे। और अंत में एक शेर है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, माता पिता के पैसे, दौलत, घर मकान सब कुछ बेमानी हो जाएगा यदि बच्चे में, स्टूडेंट में हौसला नहीं हो, उनमें उमंग नहीं हो, पढ़ने की रुचि नहीं हो। इसलिए पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। And I really thank to our heroes, our doctor, our respected sir, presented here and giving us your precious time. Thank you so much for your work, all you do. Before continue our program, there is an award ceremony to parents, of course, our small tots too. So here, I would like to call for award ceremony, I would like to call Class Topper Award. Class Topper Award, Aisha from Class 1. Please come on the stage. Aisha.
ये हमारी क्लास टॉपर है, प्लीज इनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी तालियां हो जाए। और इनको अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे डायरेक्टर सर अनिल सर को। प्लीज कम सर, प्लीज क्लैप फॉर हर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल Aditi. Third award goes to Aditi for class topper. Third topper award goes to Aditi. Please come from UKG. Ashwani, second class topper Ashwani from UKG. Navid Kumar, who is topper in UKG, class UKG. Prateek Singh, third class topper from LKG, Prateek Singh. Aditi Sagar and Prateek Raj, second topper from class LKG. Yash Kumar, class topper from LKG, please use clap. Thank you Anil sir. Thank you sir. यश कुमार, उसको दे दीजिए। Thank you Anil sir. Thank you so much. Now for next award, I would like to call for Ajay sir. Please come sir. And next award from nursery class, third topper Akshara Sinha. Please come on the stage. Please give her a huge round of applause. Akshara Sinha. अरे भैया क्लैप क्लैप, क्लैपिंग में कमी ना करें। आशीष नाथ, सेकंड टॉपर फ्रॉम नर्सरी क्लास। आशीष नाथ, सेकंड टॉपर फ्रॉम नर्सरी क्लास। आशीष नाथ, please give him a huge round of applause. Vihan Roy, class topper from nursery class. Vihan Roy. Vihan Roy, class topper from nursery class, please come on the stage. Vihan Roy. Vivan Roy. Vivan Roy from nursery class. Please clap for him. Now I'd like to call Viraj Sharma and Garima Shahai, third topper from Play. Please come on the stage. Viraj Sharma and Garima Shahai, third topper. Garima Shahai from Play, third topper. Garima Shahai. I would like to call Garima Shahai, third topper. Now next I would like to call
second topper Shreyasi Singh. Please come on the stage. Shreyasi Singh. Kavya, first topper from play. Please come on the stage. Kavya. Now there is award. Now there is award for full attendance award. I would like to call Vedita Verma. Please come on the stage. Vedita Verma from 1. Vedita Verma. फुल अटेंडेंस अवार्ड. इतने छोटे बच्चे हो वो भी फुल अटेंडेंस. प्लीज क्लैप फॉर हर. आज तक मेरा फुल अटेंडेंस अवार्ड मेरे को नहीं मिला. आई लाइक टू कॉल झांसी फ्रॉम यूकेजी. Jhansi from UKG for full attendance award. Please come on the stage. Vian Ranjan from LKG, Neatness in Work Award. Vian Ranjan from LKG, Neatness in Work Award. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ajay, sir. Thank you so much.